Hello students, welcome back. So this is basic accounting terms part 4. Already we have covered 3 parts in the previous videos. This is part 4. So here now in this lecture we are going to cover these 10 items. Now see one by one. The 21st item, trade receivable. Now you understand what is trade. Trade means sale and purchase. Trade means sale and purchase of product. Clear? Or if we are providing any sort of services, trade means to provide services. Right? Receivables. Receivable is a word generated from the word received, right? Received means we have already received. Receivables means still to receive. अभी मिलना बाकी है. Clear? So trade receivables means the amount which we have to receive in future due to some sale of product or we have rendered some sort of services. Clear? In this trade receivable, generally we are covering the combination that is of debtor and bills receivable. Bills receivables. Now understand the meaning of debtor and bills receivable. Debtor. Debtors are those whom we have sold the product and still we have to receive the amount. That means we have already given the product or we have rendered the services on credit, that means udhar, on credit, and we have to receive an amount, that is debtor. Now, what is BR? Bills receivable means we have a written document, means whatever the product we sold or services rendered, and we have a written document that which proves that we have sold the product or we have rendered the services to this particular person and this particular person is going to give us amount, right? So what is the basic difference between debtor and BR? The basic difference is debtor is based on oral agreement and bills receivable is always a written agreement, right? Debtor कैसे होते हैं? जिनको हमने ऐसे ही बोल दिया मौखिक रूप में, राइट ना, ओरल, कि ठीक है आप गुड्स ले लो, पैसे बाद में दे देना. बीआर कैसे होंगे? ऑलवेज रिटन एग्रीमेंट होगा कि हमें इन लोगों से इतना अमाउंट लेना है. दैट इज इन रिटन फॉर्म. क्लियर? Now see trade payables. Trade definition is clear. Payables means we have to pay. Receivable means we have to receive. Payables means we have to pay. In this we have to study 2 items again. That is creditors and bills payable. See? Payables. Now debtor means from these persons we have to receive. Just opposite, creditor. Creditors are those whom we have to pay. That means we purchased some items from them on credit and now we have to pay. What is BR? The amount of bill which we have to receive in future is known as bills receivable. What is bills payable? The amount of bill which we have to pay in future known as bills payable. Got the point? Now the basic difference between these two, again the same. Creditors are the oral agreement and bills payables are the written agreement. Now see the similarity. Whenever we are calling about debtor and creditor, one thing is same, that these both are oral ones, right? These two are the written ones. Got the point? Hope this point is clear. Now comes to the cost.
Cost means whatever the amount we are going to spend either on the product means on the purchase of the product or any article or for any services. Got the point? Whatever the amount we are going to pay for any product, for any article or for any services, what we have to avail. Clear? Whatever the amount we are going to pay, that is our cost. Example, अगर मैंने कोई गुड्स परचेज किया, सपोज 50,000 का मैंने कोई गुड्स परचेज किया, तो दैट गुड्स परचेज इज माई प्रोडक्ट. तो जो 50,000 मैंने पे किया, दैट इज माई कॉस्ट. क्लियर? मैंने किसी को सैलरी पे रखा, 1 मंथ उसने मेरे लिए वर्क किया, मतलब मैंने उसकी सर्विसेज अवेल की. अब जो भी मैं उसको सैलरी दूंगा, सपोज 10,000 रुपीज, दैट इज माई कॉस्ट. गॉट द पॉइंट? नाउ नेक्स्ट आइटम, वाउचर. Vouchers are the source document. Vouchers are the source document. Source document. That is the evidence of a transaction. आप किसी शॉप में जाते हो, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो, आप शॉपकीपर से क्या बोलते हो कि मुझे बिल दो, मुझे इनवॉइस दो. क्यों? क्योंकि दैट इनवॉइस और दैट बिल इज अ सोर्स फॉर दैट ट्रांजेक्शन. ठीक है? कल को अगर हमसे कोई पूछता है कि ये प्रोडक्ट कहां से आया, तो आप बोलोगे मैंने शॉपकीपर से परचेज किया. तो वो पर्सन आपसे बोल सकता है कि क्या एविडेंस है आपके पास कि आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया. एट दैट टाइम यू हैव टू शो दैट इनवॉइस, बिल और दैट डॉक्यूमेंट दैट दिस इज माई एविडेंस. क्लियर? इसीलिए अकाउंटिंग में हम जितने भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उन सब का कहीं ना कहीं इनवॉइस, बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हम ये सब मेंटेन करते हैं. ठीक है? और इन सब को हम बोलते हैं वाउचर्स. क्लियर हो गया होगा? डिस्काउंट. देखिए, हम गुड्स को जब भी सेल करते हैं, क्लियर, हम बिजनेस हैं, हम गुड्स को बनाते हैं, हम गुड्स को सेल करते हैं, तो जनरल सी बात है, जब हम गुड्स को सेल करेंगे तो हम अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट भी दे सकते हैं. क्लियर? दैट मीन्स वॉट एवर द बेनिफिट what a business houses are giving to the customers, that is discount. अब डिस्काउंट के 2 टाइप्स हैं. देखिए जरा यहां पे, एक है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट. अब दोनों में बहुत अच्छे से आप लोग डिफरेंस समझ लीजिएगा. ठीक है? देखिए यहां पे ट्रेड डिस्काउंट, जनरली ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है एक बल्क सेल पे. जनरली ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है बल्क सेल पे. वेन एवर वी वॉन्ट दैट दीज सॉर्ट ऑफ गुड्स कस्टमर्स विल बाय इन अ ह्यूज क्वांटिटी, एट दैट टाइम वी आर गिविंग द ट्रेड डिस्काउंट. क्लियर? एक और इसी में कॉम्बिनेशन आता है कि जनरली ट्रेड डिस्काउंट वी आर गिविंग टू एवरी कस्टमर. राइट? अब देखो, जैसे हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, अब कोई कस्टमर आया हमारे पास, उसको एक चेयर परचेज करनी है. एक चेयर के लिए नॉर्मली हम डिस्काउंट नहीं देते. क्लियर? अगर वो कस्टमर कहता है कि मुझे 10 चेयर्स परचेज करनी है, एट दैट टाइम वी आर थिंकिंग दैट विल गिव सम सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट टू दिस कस्टमर. ये डिफरेंस है. मतलब ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मली वी आर गिविंग टू दोज कस्टमर्स who are purchasing goods in a huge quantity. Clear? Now cash discount. Cash discount generally हम देते हैं उन customers को जो हमें कैश का पेमेंट इमीडिएटली करते हैं, उनको हम देते हैं. Clear? So those customers who are paying cash to business at the time of a transaction, to those customers we are giving cash discount. Clear? हम encourage करते हैं अपने customers को. आप समझिए बात को. कोई कस्टमर आया मेरे पास, बोलता है मुझे ये 10 चेयर्स चाहिए. ठीक है? एक चेयर की कॉस्ट है मान लो सपोज 10,000. सो द कॉस्ट ऑफ 10 चेयर्स 1 लाख. क्लियर? हमने उसको बोला कि हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे. तो 1 लाख पे 10% कितना हो गया? 10,000. तो हमें कितना रिसीव होगा? 90,000.
अब वो कस्टमर अगर हमसे कहता है कि हम आपको पेमेंट अभी नहीं दे पाएंगे, हम आपको पेमेंट देंगे आफ्टर 3 मंथ्स, अब हम ये सोच रहे हैं कि 3 मंथ्स के लिए हमारा अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू एनकरेज दैट कस्टमर टू मेक एन इमीडिएट पेमेंट वी आर ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू दैट कस्टमर। समझ में आ रहा है? अब हमने उसको बोला सर अगर आप अभी पेमेंट देंगे हमें तो हम 10% का आपको और डिस्काउंट दे देंगे जिसे हम कैश डिस्काउंट बोल रहे हैं। गॉट द पॉइंट? तो 90,000 पे 10% 9,000 मतलब कस्टमर को पे करना होगा 81,000, लेकिन अगर आफ्टर 3 मंथ्स वो पे करता है तो उसे पूरे 90,000 पे करने होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? तो ट्रेड डिस्काउंट जनरली हम सभी कस्टमर्स को देते हैं जो भी एक सर्टेन क्वांटिटी में गुड्स परचेज करेंगे, लेकिन कैश डिस्काउंट उन्हीं कस्टमर्स को दिया जाएगा जो हमें इमीडिएटली कैश का पेमेंट करेंगे। क्लियर? एक छोटी सी बात बता देता हूं यहीं पे आपको कि जब हम आगे बढ़कर के अपनी अकाउंटिंग करेंगे, जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो वहां पर आपको ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो करेंगे, लेकिन कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट का इंपैक्ट मतलब कहीं पर भी ट्रेड डिस्काउंट हम अपनी जर्नल एंट्रीज में मेंशन नहीं करते। कैश डिस्काउंट हमेशा हम अपनी जर्नल एंट्रीज में मेंशन करते हैं। कैसे करेंगे आगे देखेंगे। बैड डेब्ट्स देखिए इसका नाम देखिए, बैड डेब्ट्स, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं बैड डेटर्स। अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं डेटर्स की डेफिनेशन। डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पे सेल किया हुआ है, उधार पे सेल किया हुआ है और उनसे हमें पैसा लेना है। ठीक है, अब सुनना, कब वो डेटर हमारे लिए बैड हो जाएंगे, कब वो डेटर हमारे लिए बुरे हो जाएंगे? वो डेटर हमारे लिए तब बुरे हो जाएंगे जब वो हमें पेमेंट नहीं दे पाएंगे। ठीक है, अब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, मे बी दैट पर्टिकुलर पर्सन इज मींस इंसॉल्वेंट, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू पे। What we will do? Clear? So we will call that person, that debtors as a bad debtors. Clear? Next, balance sheet. A sheet of balances. A sheet of balances. ठीक है, शीट तो समझ में आया। अब बैलेंसेस किस चीज के? बैलेंसेस होंगे आपके एसेट्स, बैलेंसेस होंगे आपके लाइबिलिटीज के। क्लियर? तो जो भी बैलेंसेस होंगे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के, उसके लिए एक शीट बनाई जाएगी जिसे हम बैलेंस शीट बोलेंगे। ठीक है, एक छोटा सा टेबल फॉर्म में बनाया जाता है, लाइबिलिटीज, एसेट्स, इस तरह से एक टेबल फॉर्म हम बना लेते हैं इसमें, और यहां पर आइटम्स लिखते हैं और उनके अमाउंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, आगे बुक वैल्यू, द वैल्यू मेंशन्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज बुक वैल्यू। दोबारा बोलता हूं, द वैल्यू विच वी आर गोइंग टू मेंशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज बुक वैल्यू। आ जाइए बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट जनरल्स जो हम बनाएंगे आगे चल के, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड सो ऑन। ये बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे। ठीक है, अभी तो हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं, आगे आगे धीरे धीरे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। ये सब चैप्टर्स हैं, तो ये ही हमको पढ़ने हैं कि हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। लास्ट वन देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो भी आप गुड्स सेल करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी? दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। काफी मैं समझा चुका हूं डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में, जो वीडियो पार्ट 3 है, मैं उसमें काफी समझा चुका हूं कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो इजीली आपको क्लियर होता जाएगा। होप ये सभी पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे आपको। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज अपने डाउट्स को मेंशन करिए, श्योरली आई विल रिप्लाई। थैंक यू।